Good morning, everyone. In the last lecture, we have seen about basic introduction regarding matrices, like what is matrix, what are types of matrix, how we can identify that whether it is a triangular matrix or if it is a symmetric matrix or if it is a skew symmetric matrix. So these all are things we have already discussed in the last lecture, which I have conducted last week. So in this lecture, I will be moving forward and I will be discussing regarding how to do a multiplication of matrices, how to do an addition. Then moving forward, how to find a value of a matrix, what are the properties of it, and what is the rank of a matrix. These are the topics which I will try to cover up in this session. So moving on the next topic, as from the where I have left last time. So the topic is linear or algebraic functions using matrix on matrices. Algebraic functions on matrices. That is basically nothing but how we can add on a matrix, how we can, if suppose we have to add two matrices, how to add, what is the condition for adding or multiplying, that we will come to see here. So first expression is addition or subtraction. First one is addition or subtraction. So suppose I am having two matrices A and B. Suppose I am having two matrices A and B. A and B. The order of A is m cross n and order of B is P cross Q. Then अगर इफ यू वांट टू डू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है किसी भी मैट्रिसेस का, तो फिर हमें ध्यान क्या रखना होगा, जो ऑर्डर ए का है वही ऑर्डर बी का होना चाहिए. मतलब और सिंप्लीफाई वर्ड में बोलें, ऑर्डर इन द सेंस मतलब जो जितने नंबर ऑफ रो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स ए मैट्रिक्स में है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स उतने ही नंबर ऑफ रोज बी में भी होना चाहिए. सो कंडीशन क्या है, हम मतलब ए और बी तभी ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं कब, जब m की वैल्यू p के बराबर हो एंड q की वैल्यू या सॉरी n की वैल्यू q के बराबर हो. तभी क्या होगा, किसी भी दो मैट्रिसेस का आइदर, तभी हमारा क्या पॉसिबल होगा, तभी हमारा पॉसिबल होगा आइदर a प्लस बी और a माइनस बी. फॉर एग्जाम्पल के केस में मान लेते हैं, हम बेसिक एग्जाम्पल एक ले लेते छोटा सा. मान लेते हैं हमारे पास मैट्रिक्स ए है, 2 4 1 3 7 0 और मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी इज नथिंग बट -1 0 5 7 2 1. और हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को जोड़ना है. तो कंडीशन क्या है दोनों मैट्रिसेस के जोड़ने की, कंडीशन ये है हमारी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए. तो देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर कितना है, यहाँ पे रो दो तीन है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, कॉलम कितनी है तीन. तो ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 3. उस दिन मैंने बताया था पहले रो को लिखते हैं फिर हम कॉलम को लिखते हैं. सिमिलर यहाँ पे भी देखें, दो रो हैं तीन रो हैं दो कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3. तो यहाँ पे क्या हमने देखा, दोनों का ऑर्डर सेम है. और अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो ए प्लस बी कैसे करेंगे, देखते हैं ए प्लस बी क्या हो जाएगा. ए प्लस बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नथिंग बट अगर हमें ए प्लस बी चाहिए तो कुछ नहीं करना है, हमें जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जोड़ दे. जैसे यहाँ पे ए वन वन क्या है 2 है, यहाँ पे ए वन वन क्या है बी वन वन क्या है वह -1, दोनों को जोड़ दो. 2 - 1 1, 4 + 7 11, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 7 + 5 12, 0 + 1 1. So in this way we can do addition or similarly we can do subtraction of any given matrices. Next one, moving forward, how to do a multiplication of matrices. How to do
a multiplication of matrices. How to do multiplication of matrices? In that also, first we will see, if suppose I have to multiply a scalar quantity, so multiplication by scalar. Scalar means, suppose I am saying I am having a matrix A of order m cross n, and I have to multiply, I have to find what is k of A. That is, this k can be any integer, 1, 2, 3, -1, -1.5, any value we can take. So this is the one we are discussing about. So for that, here we need not to see any order. What we have to do, we will directly multiply each of the corresponding element in matrix A with a constant k. That is, जितने भी एलिमेंट्स ए में अवेलेबल हैं उन सभी एलिमेंट्स को, हर एक पार्टिकुलर एलिमेंट को हम के से मल्टीप्लाई करते जाएंगे. फॉर एग्जांपल के लिए जैसे देख लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे सपोज करते हैं हमारे पास मैट्रिक्स, सेम वही मैट्रिक्स है, यही ए मैट्रिक्स है ये वाली, और मुझे क्या चाहिए, सेम वही ए मैट्रिक्स है हमारे पास, मुझे क्या चाहिए, 3a चाहिए. यहाँ पे क्या चाहिए, 3a. क्या होगा, व्हाट इज 3 ऑफ ए? तो 3 ऑफ ए विल बी नथिंग बट, हमें क्या, मैंने क्या बोला, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट विद द स्केलर क्वांटिटी. सो स्केलर क्वांटिटी हियर इज 3. So multiply it with the scalar quantity. 3 2 is 6, 3 4 is 12, 3 1 is 3, 3 3 is 9, 3 7 is 21, 3 0 is 0. So this is the resultant matrix of 3. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. कब, जब हमें किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है. ओके, नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वन इज बी, मल्टीप्लिकेशन बाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. अब हमारे पास क्या था, अभी तो हमारे पास क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी से हमने मल्टीप्लाई. अब मान लेते हैं दो मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर आगे नेक्स्ट सारी चीजें इसी पे डिपेंड करेंगी. तो सपोज करते हैं हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n. एक और मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है हमारे पास p क्रॉस q, और मुझे निकालना है ए बी, ठीक है, और हमें निकालना है बी है. एक चीज और देखेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे हम इसका एडिशन से, ठीक है. सो लिसन दिस, if we have to do multiplication of two matrices, the condition is what, the first matrix column should be equal to second matrix row. That is, in Hindi we can say, अगर हमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए. अगर ऐसा है तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा. तो व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन इज फॉर ए बी, अगर ए बी मल्टीप्लिकेशन कराना है तो क्या होना चाहिए, n इक्वल टू p होना चाहिए. n और p अगर बराबर होता है देन, अगर n एंड p बराबर होगा देन जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी. ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी हो जाएगा इस केस में हमारा पहले वाले मैट्रिक्स का रो, दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम, m क्रॉस q. सिमिलरली अगर हमें सपोज करते हैं बी एग्जिस्ट कराना है, अगर बी एग्जिस्ट कराना है तो पहले वाले का मैंने क्या कहा, और फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम, सो फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम इज q and this should be equal to what, this should be equal to m, फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स रो. अब इस केस में इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिमिलरली वही इसी तरीके से इस केस में इसका ऑर्डर ऑफ बी ए क्या हो जाएगा, नथिंग बट पहले वाले का रो, दूसरे वाले का कॉलम. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो धीरे धीरे हम इसको आगे जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा, कि अगर
हम एडिशन करते हैं, जैसे कि a प्लस बी करें या b प्लस ए करें तो हमारा रिजल्ट सेम आएगा, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि ए बी ए के बराबर होगा। इसका मतलब कि एडिशन की जो प्रॉपर्टी है मैट्रिसेज में वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करती है। कर भी सकती नहीं भी, बट कंडीशन नहीं है वहां पे, वो हमेशा करेगी ही करेगी। तो इसको मैं नोट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलो ई commutative law, that is a plus b equal to b plus a. However, multiplication of matrices may or may not follow, will not follow the commutative। कोई जरूरी नहीं है कि वो फॉलो करेगी। दैट इज ए बी will not be equal to BA generally। मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा पाया जाएगा कि वो उसके बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पे एक टर्म और ऐड कर देते हैं, कम्यूटेटिव लॉ जनरली। जनरल ऐसा पाया जाएगा कि जनरली आप अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। सो अब देखते हैं, ये तो हमारा हो गया कंडीशन किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे कैसे, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मैट्रिक्स ए है, 2 0 1। मेरे पास एक मैट्रिक्स बी भी है, 1 2 एंड 3। ओके, क्या पाया हमने यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमें क्या करना है, हमें ए बी और बी ए निकालना है। क्या निकालना है हमें ए बी, what is AB and what is BA, these two things we need to find out. So for finding out multiplication of two matrices, that is AB and BA, first of all what we need to do, we need to check whether it is satisfying the criteria of multiplication. So what is the criteria of multiplication? We have to check the column of first element matrix should be equal to the row of second matrix, which is multiplying in the order. So here what is the thing? We will see. Here see, the order is, there are one row, 3 columns. So 1 cross 3. Here how many? Here number of rows are 3, 1 row, 2 row, 3 row, but columns are 1. So what you can see? You can see here that by marking it with green, first matrix for AB, first matrix column is equal to second matrix row. So what is the resulting order of AB? So resulting order of AB will be nothing but what is first matrix column, sorry, first matrix row, second matrix column. So it will be 1 cross 1. Now what will be the result? We'll see. See how we will multiply a matrix. Not corresponding. How we will do? First row, first element. This will be multiplied with first row, first element will be multiplied with the column element. So 2 into 1 is equal to 2 plus 0, second row, first row, second column element, then 2. Then so how we will multiply? 2. I'm multiplying completely. 2 into 1 plus 0 into 2 plus 1 into 3. What we are getting? We are getting a result of 2 into 1, 2 plus 1, 0 plus 3, that is 5. Order is 1 cross 1. Now here you see. Okay. I will also see with 3 cross 3 or 2 cross some bigger matrices also. Now for BA, let's see for BA what is happening.
For BA, you see the order of B is 3 cross 1. For A is 1 cross 3. Again, you see, marking in with green color. Here, first matrix column is equal to second matrix row. So this matrix multiplication is also possible. But what is the order of this matrix? Order is 3 cross 3. Okay. So what is the result? We'll see. What I said, what we have to do? You have to take first row, first column element of first matrix. First row, first column element of first matrix is here is 1. It needs to be multiplied with, second matrix, first element. So this one into 2 will become 2. Okay. For simplicity purpose, you can write like this: 1. So we have to multiply 1, 2, 3 with 2, 0, and 1. So 1 into 2, 2. 1 into 0, 0. 1 into 1, 1. Like this only you have to do. First row, first column. Now, second row, 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 1s are 2, now 3 2s are 6, 3 0s are 0, 3 1s are 3. So you see, here AB is only 5, but BH is such a big matrix. So these two matrices are not equal also. This only I was saying that multiplication of matrix will not be commutative generally. Sometimes you may get both AB and B are equal, but generally it will not be. One more example we can see. More importantly, I will discuss regarding the questions which has come in GATE already. So question number 1, first question we will see here. Suppose I am having 3 matrices. Matrix X in same form only it has come. X matrix order is 4 cross 3. Y is a matrix of order again 4 cross 3. P is a matrix of order 2 cross 3. In GATE paper it has asked what is the order of matrix P into X transpose Y inverse P transpose whole transpose. So we have to find the order of this matrix. Solution. We'll go. First of all, we solve this smaller bracket. So X, the order of X is 4 cross 3. I explained in the first class that when we are doing transpose of any matrix, row will be interchanged with column will interchange with row. So if 4 rows, 3 columns are there, then in transpose 3 rows, 4 columns will be there. So order will become 3 cross. Now what is Y? Y is, the order of Y is 4 cross 3. What we have to do? We have to multiply X transpose into Y. So now we will multiply X transpose into Y. So if suppose I am multiplying X transpose into Y, see, X transpose is first matrix, so its column is equal to its row, Y row. So what is the order of XTY? The order is 3 cross 3. Also, I have not yet discussed regarding inverse. We have not yet discussed regarding inverse. But whenever we will be doing the inverse functions, there I will discuss about how to find the order. Generally, since here is the matrix is square matrix, for a square matrix, order doesn't change while doing any inverse.
Generally for inverse of a matrix we generally find inverse only for square matrices only. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 क्रॉस 3 है। ट्रांसपोज करने के समय पे क्या हो गया, रो से कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दिया, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4। सिमिलरली वाई का ऑर्डर था 4 क्रॉस 3। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्स ट्रांसपोज में कॉलम 4 है, वाई में कॉलम रो 4 है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसलिए एक्स ट्रांसपोज वाई क्या हो जाएगा हमारा 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बनेगी। अभी हमने इनवर्स का ऑल्दो डिस्कस नहीं किया, बट इनवर्स जब भी निकाला जाता है जनरली वो हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं, और इसी वजह से ऑर्डर जो होगा वो सेम मैट्रिक्स और उसका इनवर्स करने के बाद भी ऑर्डर सेम होता है। सो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। सो एक्स ट्रांसपोज वाई का इनवर्स उसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ पर? फिर हम अब इसमें क्या किया, इसने पी का मल्टीप्लीकेशन किया, हम भी कर देते हैं पी का मल्टीप्लीकेशन। सो पी एक्स ट्रांसपोज वाई का इनवर्स हमें मल्टीप्लाई करना है। अभी पी का ऑर्डर देखो क्या है, पी का ऑर्डर हमारा 2 क्रॉस 3 है, वाई का ऑर्डर कितना है, एक्स इस पूरी के मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। ये हो गया 2 क्रॉस 3 और इस पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3। तो वापस वही कहानी आ गई, मल्टीप्लीकेशन करना है तो हम चेक करेंगे, देखो इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो इस पूरे का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इस पूरे का ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2 क्रॉस 3। कोई दिक्कत? पहले वाले का रो, अंतिम वाले का कॉलम, तो हमने लिख दिया 2 क्रॉस 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पूरी मैट्रिक्स को, ये जो बन के आई हमारी, इस पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है पी के ट्रांसपोज से। चलो भाई पहले पी के ट्रांसपोज का ऑर्डर लिख लो। पी के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पी के ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दो, कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दो, तो 3 क्रॉस 2 बन जाएगा। अब देखो हमें इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है इस पी ट्रांसपोज से, तो इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो इसके ऑर्डर से हम कंपेरिजन करेंगे, तो इसका जो कॉलम है वो इसके रो के बराबर होना चाहिए जो है। सो अगर हम मल्टीप्लाई करें पी एक्स ट्रांसपोज वाई इनवर्स पी ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिलेगा ऑर्डर, हमें ऑर्डर मिलेगा पहले वाले का रो दैट इज 2, उस वाले का भी 2, 2 क्रॉस 2 की हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी। अब इसने क्या बोला, आप इसका भी एक बार इनवर्स कर दो, सॉरी ट्रांसपोज कर दो, तो भाई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप ट्रांसपोज भी करोगे तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 ही रहेगा, और यही हमारा क्या है इसमें आंसर है। और वेरी सिंपल। सो अगर हमें मैट्रिक्स का मेथड पता है कि मैट्रिक्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी मैट्रिक्स का रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2। एक नंबर का ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक मैट्रिक्स दी है जे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, इसकी वैल्यू है 3 2 3 2 1 2 4 2 1 2 6। एक मैट्रिक्स ये थी जे। एक और मैट्रिक्स उसमें दी हुई है के इज इक्वल टू, ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स की पहचान होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा, रो कितने भी हो सकते हैं, 1 2 -1। उसने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमें निकालना है वैल्यू किसकी, हमें वैल्यू निकालनी है के ट्रांसपोज जे और के की। ठीक है, तो आपके ऊपर है, हम किस तरह से भी कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जे के को सॉल्व करते हैं। चलो जे का ऑर्डर, जे और के का ऑर्डर क्या है देखते हैं। इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3, इसमें रो 3 है कॉलम 1 है, तो ये हो गया 3 क्रॉस 1। सो जे इंटू के, अब जे इंटू के करना है, जे इंटू के ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर बनेगा तुम्हारा पहले वाले का रो दैट इज 3, दूसरे वाले का कॉलम दैट इज 1, क्योंकि पॉसिबल है। सो मल्टीप्लाई कर दो, क्या बताया मैंने, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लाइक दिस। सो इट विल बी 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू -1 -1 आ गया। ओके, सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 4 2 जा 8 2 इंटू -1 -2। सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम
सो 1 + 2 × 4 एंड -6। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगी वापस, एक कॉलम मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3 × 1 एंड इट विल बी 3 + 4 - 1 is 6, 2 - 2 is 0, that is 8, and 1 + 4 5, 5 - 6 is -1. So what needs to be done further? You have to do K transpose JK. So what will be K transpose first? So K transpose will be nothing but a row matrix, 1 2 -1. Order will be, अब देखो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 row 3 columns, 1 row 3 columns. अब हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, हमें करना है K ट्रांसपोज JK इंटू JK. अभी JK का ऑर्डर क्या था, 3 × 1. K ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है, 3. देखो 3 से 3 गया, खत्म कहानी. हम ऑर्डर क्या बचा, सिर्फ 1 × 1 बचा. तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो सिंगल एलिमेंट मिल जाएगा उस मैट्रिक्स में. कर दो. मैंने क्या सिखाया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. भाई यहाँ पे एक ही रो एक ही कॉलम है, तो 1 × 6 1, 6 1 = 6 प्लस 8 2 = 10, 16 16 और 6 22 22 प्लस 1 - 1 -1 × -1 + 1, इट इज 23. तो दैट इज 1 × 1. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन या जो हमारा ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आया था वो हम यहाँ पे मैंने डिस्कस किया. ये बहुत सिंपल सी चीजें, और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे तो उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं, बट हम इस चीज को डिस्कस एकदम लास्ट में करेंगे जब हमारा पूरा टॉपिक ओवर हो जाएगा. तो उसके बाद में साथ में कंबाइन करके सारे टॉपिक्स को वहां पे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के फॉर्म में हम कर लेंगे. ओके, चलो. So moving forward to the next topic. So next topic is determinants. डिटरमिनेंट क्या है, जो भी हमने मैट्रिक्स लिखा रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसकी वैल्यू को निकालना ही डिटरमिनेंट कहलाता है. जनरली क्या है, एक टूल है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का. क्या है, एक टूल है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट. सो इट इज अ मैथमेटिकल टूल, इट इज अ मैथमेटिकल टूल that represent the complicated values in a simple tabular form. Okay. कैसे करते हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, कैसे सॉल्व करते हो, देखते हैं कैसे करेंगे. अगर सपोज करो हमारा ऑर्डर 1 × 1 का है, कोई मैट्रिक्स है 1 × 1, 1 × 1 की मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, वो खुद ही होगा. तो इस केस में नंबर इटसेल्फ इज द डिटरमिनेंट. अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 है, देखो मैट्रिक्स को हम को हम रेक्टेंगल से डिनोट करते थे, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं. तो कैसे, तो देखो ऐसे डिटरमिनेंट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा. मानते हैं हमारा 2 × 2 की जो मैट्रिक्स थी उसके एलिमेंट हैं ए बी सी एंड डी. सो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हो, तो देखो डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका, इसका इससे और इसका इससे. ठीक है. सो अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें डेल्टा क्या मिलेगा, इट विल बी ए डी माइनस, और उसको क्या करना, माइनस कर देना. जैसे कि स्मॉल क्लासेस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो करते थे फॉर सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सेम वैसा ही मेथड है डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने का, माइनस बी सी. ये तरीका है किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का. सपोज करते हैं अगर हमारे पास अब 3 × 3 मैट्रिक्स आ गई, तो अभी 3 × 3 कैसे निकालेंगे, उस चीज को सॉल्व करने के लिए से को सॉल्व करते हैं. सपोज करते हैं हमारे पास 3 × 3 मैट्रिक्स है. 3 × 3 मैट्रिक्स कैसी है, डेल्टा इज इक्वल टू, मैं एलिमेंट के फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको, A11. हमें इस मैट्रिक्स का निकालना है A11. इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट निकाल के बाहर निकालना है. ठीक है.
दैट इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। तो देखो डिटरमिनेंट निकालना बहुत इजी है, एक बार उसको समझ लेंगे तो एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि देखो कैसे करना है। डिटरमिनेंट निकालते समय हमें एक चीज ध्यान रखना होगा, कोई भी रो कोई भी कॉलम हम उठा सकते हैं, बट ध्यान रखेंगे जो भी रो जो कॉलम उठाएंगे उस सिर्फ उसी को पकड़ के चलेंगे। तो सपोज करते हैं मैं बाय डिफॉल्ट अभी सिंस हमारे पास डिटरमिनेंट निकालने की वैल्यूज निकालने के बहुत तरीके हैं, हम देखेंगे किसी रो या कॉलम में जिसमें सबसे ज्यादा जीरो होंगे उस रो को यूज करेंगे या उस कॉलम को यूज करेंगे। तो सिंस यहाँ पे हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यूज हैं तो हम क्या करते हैं, मैं पहला रो ले लेता हूँ। आई हैव सेलेक्टेड दिस फर्स्ट रो। तो कैसे करेंगे, मैंने पहला रो उठाया, फर्स्ट पहले रो का पहला एलिमेंट ले लो, लिख दिया। जैसे ही आपने पहले रो का पहला एलिमेंट लिया, उस रो उस कॉलम को छोड़ दो, जो बचा हुआ है उसको वापस डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दो। मतलब हमें क्या करना है, इसे तोड़ना है। किस तरह से तोड़ना है, छोटे छोटे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के फॉर्म में जो 2x2 की बन जाएगी। देखो ये तो ये हो जाएगा A22, A23, A32 एंड A33। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है इसके बाद माइनस, पहला प्लस फिर माइनस। ये क्यों हो रहा है ये भी बताता हूँ, क्यों इस तरह से प्लस माइनस कर रहे हैं। फिर हमने उठाया फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट उठा लिया था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट हमने उठाया A12। अब मैंने क्या बताया, आपको जो भी एलिमेंट उठाना उस रो और कॉलम को छोड़ दो। तो A11 ये रो A12 का ये कॉलम छूट गया तो बचा क्या, यहाँ बचा A21, A23, A31, A33। तो ये बचा प्लस। अगला क्या आएगा, A13। मैंने क्या कहा, जो भी रो आप जो भी कॉलम उठाओगे जो भी एलिमेंट उठाओ उस रो और कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दो। तो छोड़ दिया, बचा क्या, A21, A22, A31, A32। सो मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूँ, कुछ बताऊंगा यहाँ पे। तो हमारी वैल्यू क्या होगी इस मैट्रिक्स की, वो हो गई। अब वैसे जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही कर देंगे, डायगोनली मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। A22, A33 माइनस A21, A32 माइनस A12, A21 सॉरी A33 माइनस A31, A23 फिर प्लस A13, A21, A32 माइनस A22 एंड A31। अब समझेंगे एक चीज, दो टर्म कभी कभी गेट में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ दिया है, बट बहुत रेयर आया है, बट फिर भी फॉर सेफर साइड हमें सभी चीजें पता होनी चाहिए जो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। देखो एक्चुअल में ये जो अब मैं जो चीज बॉक्स में बंद करूंगा ये क्या है बेसिकली, सो दिस इज नथिंग बट ये हमारे A11 का माइनर है, दिस इज नोन एज माइनर। दिस इज नोन एज माइनर। माइनर मीन्स नथिंग बट आपको माइनर में क्या करना होता है कि जिस भी मैट्रिक्स का एलिमेंट का माइनर पूछेगा उस रो और उस कॉलम को छोड़ दो, बची हुई एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकाल दो, वही हमारा क्या होता है, माइनर होता है उस एलिमेंट का। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये तो हो गया हमारा माइनर। दूसरा क्या है, अगर सपोज करते हैं, चलो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पे पहले।
व्हाट इज माइनर? माइनर ऑफ एलिमेंट को एग्जांपल से भी दिखा देंगे। इट इज ऑब्टेन्ड बाई, सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ, इट इज ऑब्टेन्ड बाई, जो मैंने बोला क्या करना है, उस कॉलम के एलिमेंट और रो को छोड़ दो, डिलीटिंग द रो एंड द कॉलम इन विच द पार्टिकुलर एलिमेंट इज, यही बोला मैंने। कहने का मतलब, सपोज करता हूं मैं कोई मैट्रिक्स ए उठाता हूं, एलिमेंट है 0 1 2 1 2 3 3 1। किसी ने पूछा आप मुझे माइनर बता दो किसका, मुझे माइनर चाहिए, माइनर ऑफ, किसी ने मेरे से कहा आप मुझे माइनर बताओ A32 का। ठीक है, सबसे पहले A32 एलिमेंट कहाँ पे है? A32 एलिमेंट थर्ड रो सेकंड कॉलम, दिस इज आवर A32 एलिमेंट। डेफिनेशन क्या कहती है? हमें उस रो और उस कॉलम को छोड़ देना है जिसका वो एलिमेंट है। हमने उस रो और कॉलम को छोड़ा तो हमारे पास क्या बचा? देखो तो हमारे पास बचता है 0 1 2 3। दिस इज व्हाट? दिस इज माइनर ऑफ A32। एक और टर्म होता है, एक और टर्म होता है, वो क्या होता है? कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? कुछ और नहीं, मान लेते हैं मुझे कोफैक्टर को मैं सी से दिखाता हूं। कोफैक्टर CIJ, इट इज इक्वल टू -1 इंटू I प्लस जे इंटू I प्लस जे इंटू माइनर ऑफ एलिमेंट। तो जैसे कि अगर मैंने यहां से पूछा C32 क्या हो जाएगा, तो C32 क्या हो जाएगा? आप क्या करोगे? -1, भाई एलिमेंट लिख दो, 3 + 2 जोड़ दिया और माइनर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 2 1 3। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज कोफैक्टर एंड दैट इज माइनर। तो बेसिकली डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट क्या है? किसी भी रो के कोफैक्टर का सम है। आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम उठा लो, उसी पूरे उसके कोफैक्टर को जोड़ दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डिटरमिनेंट मिल जाएगा, राइट। सो मैं डिफाइन कर सकता हूं, और भी सिंपल टर्म में अगर मैं डिफाइन करूं तो ये कभी कभी उसमें आ जाता है, आपका EC के जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसमें आ सकते हैं। जैसे ये डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज नथिंग बट determinant of a matrix is defined as the sum of product of elements of any row or column with the corresponding cofactors। कहने का मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, तो अगर मैंने फर्स्ट रो एलिमेंट उठाया है, ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं होगा कि दूसरे के रो आप एलिमेंट दूसरे रो का उठाओ, कोफैक्टर दूसरे रो का, तो डेल्टा क्या हो जाएगा? पहले उस वाले केस पे फर्स्ट रो एलिमेंट उठाया तो A11, उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो C11, देन A12, देन C12, देन A13, C13। आप ये कर लो, कोई कहेगा नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं सेकंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, भाई ठीक है तुम कॉलम एलिमेंट ले लो, तो A11 C11, A21 C21 प्लस A22, सॉरी A31 C3। ध्यान रखना है जो भी रो का एलिमेंट आप उसको उठाना है या जो भी कॉलम आप उठा रहे हो उसी कॉलम पे स्टिक रहना है, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, हमें वैल्यू मिल जाएगा। और इसी वजह से अल्टरनेट आ रहा था, पहला प्लस फिर माइनस, क्योंकि
दूसरा एलिमेंट क्या था 1 2, इवन पे है तो पॉजिटिव -1 की पावर, इवन नंबर रखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड नंबर रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। उसी वजह से पहला पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो इस तरह से हमारा डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है। बट जनरली गेट में हमारे पास क्या टाइम बहुत कम है, हमें 3 घंटे के अंदर 65 क्वेश्चन को फॉलो आउट करना है, तो हम इतना लंबा मेथड फॉलो नहीं करेंगे, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट होगा। देखते हैं कैसे कर सकते हैं 3x3 मैट्रिक्स का शॉर्टकट। चलो भाई शॉर्टकट से हमको मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। चलो भाई डिटरमिनेंट निकालते हैं। पहले मैं एक लॉन्ग कट निकालता हूँ। मुझे डिटरमिनेंट निकाल चाहिए किसका, इसका। मुझे डिटरमिनेंट चाहिए किसका, तो इसका चाहिए। 0 1 2 1 2 3 3 1 1। देखो जब भी एक तो डिटरमिनेंट निकालने का अगर हमें शॉर्टकट नहीं पता है तो ध्यान रखेंगे जहां पर सबसे ज्यादा जीरो है वो रो या वो कॉलम उठा लो। तो भाई हमारा या तो अब तुम फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, चलो मैंने फर्स्ट रो उठा लिया। फर्स्ट रो 0 इंटू माइनर, 0 0 इंटू कोफैक्टर, जीरो का को से आप कुछ भी कोफैक्टर मल्टीप्लाई करो जीरो ही आएगा। फिर आता है प्लस 1 इंटू दूसरे वाले का कोफैक्टर क्या हो जाएगा -1 इन द ब्रैकेट 1। अब उस रो उस कॉलम को छोड़ो उसका माइनर मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 1 1 -3 या 9, राइट, ब्रैकेट बंद। फिर आएगा +2 इंटू उसका कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर -1 की पावर 1 1 + 3 पॉजिटिव है, -1 1 ही हो जाएगा इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो। अब उस रोज कॉलम को छोड़ दो 1 इंटू 1 1 -3 2 6 -6 लिख दिया यहाँ पे हमने। ब्रैकेट ओपन करो, ओपन करोगे तो क्या मिलेगा तुमको 8 -10 दैट इज इक्वल टू योर -2। अभी एक तो ये बहुत बड़ा सा मेथड हो गया, भाई इतना समय कौन कर लेगा, इतना मल्टीप्लिकेशन कौन करेगा, गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो हम एक दूसरा शॉर्टकट तरीका लेके आते हैं जिसे हम सारस डायग्राम बोलते हैं। कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, जो भी ये ध्यान रखेंगे ये मेथड सिर्फ और सिर्फ 3x3 मैट्रिक्स पे वर्क करेगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले पूरी मैट्रिक्स जिसका भी डिटरमिनेंट हमें निकालना वो ऐसे का ऐसे उतार लो। उतार लिया, उतारने के बाद कुछ नहीं करना है, फिर पहला और दूसरा रो कॉलम वैसे का वैसे उतार दो। 0 1 सॉरी 0 1 3 1 2 हो गया। क्या करना है, पहले मैट्रिक्स वैसे की वैसे उतारो, फिर नेक्स्ट 2 कॉलम, पहला 2 कॉलम उसके बाद वैसे का वैसे लिख दो। लिखने के बाद क्या करना है, देखो मैं एरो बना के दिखाता हूँ डिफरेंट डिफरेंट कलर से। ये जितने भी रेड कलर्स के हैं, चलो अलग अलग मैं अलग कलर बना देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा इससे। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ से देखेंगे रेड वाले पे जो कलर्स हैं, रेड कलर पे जो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 0 × 2 0 0 × 1 0, तो 0 हो गया प्लस, चलो जैसा लाइन होगा वैसा ही वर्डिंग भी लिखता हूँ मैं 0। फिर मैंने पिंक कलर यूज किया तो पिंक कलर, चलो फिर प्लस जोड़ दो 1 × 3 1 3 3 3 1 3 3 9 9 लिख दिया प्लस 2 1 2 2 1 2 तो 2 आ गया। ओके, इसे अब आप ब्रैकेट में बंद कर लो। अब फिर एक और वो दोबारा आप लाइन खींचेंगे, अब तिरछी लाइन खींचेंगे किस तरीके से, चलो अब हम ग्रीन कलर उठाते हैं, ये ग्रीन हो गया। चलो भाई एक ब्लू भी ले लो, ये ब्लू ले लिया मैंने। एक और कलर ले लें, कौन सा ले लेते हैं, चलो की बार चलो ब्लैक ही ले लेते हैं। अब चलो ये जो नंबर्स हैं उन, अब इन दोनों के बीच में एक माइनस साइन लगा लो, शॉर्टकट यही है हमारा। पहले क्या आया हमारा ग्रीन कलर आया, चलो भाई ग्रीन कलर ले लो, ब्रैकेट में वापस लिखेंगे 1 × 1 × 1 1 हो गया। फिर हमारा ब्लू कलर है तो ब्लू, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो 0 × 3 × 0 × 1 तो 0 ही हो जाएगा। फिर सॉरी नेक्स्ट वन ब्लू कलर का था, इसको ब्लू कलर से कर दो 0। फिर नेक्स्ट वन हमारा ब्लैक कलर का है 2 × 4 4 3 12,
2 प्लस 2 टू या 4, 4 3 या 12, दिस इज 12। आप सॉल्व कर दो, बस हो गया, सिंपल एकदम। 9 टू 11 माइनस 12 1 13, तो ये हो गया -2। तो देखो ये एक शॉर्टकट तरीका है किसी भी 3x3 मैट्रिक्स के इंडिटरमिनेंट को सॉल्व करने का। या तो हम ये कन्वेंशनल मेथड फॉलो करें, या तो इस तरीके से। हमें क्या करना है, पहले मैट्रिक्स को वैसे का वैसे लिख लो, फिर फर्स्ट 2 कॉलम्स को लिख लो, फिर डायगोनली मल्टीप्लाई करके सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द वे बाई विच वी कैन डू find the matrix determinant very easily. Okay, what we have to generally do, first of all we have to do arrange the matrix as it is given, then addition to that arrange first 2 columns, and then follow the steps as mentioned in this diagram. Okay, okay, moving forward, आज की लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसके बारे में हम क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल इसके ऊपर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को भी हम स्टडी आउट करेंगे, और उसी की बेसिस पे फिर हम नेक्स्ट क्लास में अपने टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। इससे ऊपर से एक ना एक क्वेश्चन हर हालत में गेट में आपको मिल जाएगा, श्योर शॉर्ट एक नंबर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या है, चलो देखते हैं। पहला पॉइंट, अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, तो दोनों वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। सो वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू value in, instead of value writing I will write determinant. Determinant of transpose of matrix is equal to determinant of original matrix. Very good. Next one. Next point is, अगर सपोज करो जैसे शॉर्टकट से, अगर हम मान लें डिटरमिनेंट निकालने गए और हमने देखा कोई दो रो या दो कॉलम सेम है, जैसे दो रो दो कॉलम सेम है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 लिख दो। इफ टू रो एंड कॉलम्स आर similar or same, then the determinant of such matrix is 0। ठीक है, उस केस में हमें क्या करना है, उसका कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ना सारा समझ कुछ नहीं लगाना है, बस ध्यान से देखेंगे और साइन लगा देंगे, क्या 0 लिख देंगे। अब समझ करो हमने क्या किया, रो को कॉलम से इंटरचेंज किया, कोई एक रो को किसी एक कॉलम से इंटरचेंज किया। देन वैसे केस में पूरी रो कॉलम को चेंज करने को नहीं मैं बोल रहा हूँ, पूरी रो कॉलम को चेंज करो तो ट्रांसपोज हो जाएगा, उसके में डिटरमिनेंट सेम रहेगा। बट किसी एक रो को एक कॉलम से चेंज, मतलब मान लेते हैं रो R1 को R2 से चेंज कर दिया, R2 को R3 से चेंज कर, सपोज करते हैं, वो क्यों करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उस चीज को। बट अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो ध्यान रखेंगे, हम उस केस में अपने डिटरमिनेंट के बाहर एक साइन लगाएंगे माइनस का। इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स आर interchanged, then the sign of determinant changes. Determinant changes. Then the sign of determinant changes. नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ सेम वही कहानी। अगर सपोज करते हैं हमने R1 को R2 से चेंज किया, R2 को R3 से चेंज किया, R3 को R1 से चेंज कर दिया, हमने इंटरचेंज किया R1 से R2, R2 से R3। तो अगर हमने तीनों रो या तीन कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन वापस सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इफ थ्री रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर इंटरचेंज्ड, then the sign of determinant remains same, remains same, remains same। ठीक है,
आगे देखते हैं। आगे देखिए। नेक्स्ट वन, अगर सपोज करते हैं हम, जैसे कि पहले क्या कर रहे थे, अगर हमको ध्यान से, अगर किसी को याद हो, किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर हम किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या करते थे, हर एक एलिमेंट में वो मल्टीप्लाई करते थे ना, राइट, हर एक मैट हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते। तो डिटरमिनेंट पे उसका असर क्या पड़ेगा देखते हैं। चलो देखते हैं, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम is multiplied is multiplied is multiplied by a same factor, सपोज करते हैं k, देन, तो ध्यान रखेंगे डिटर्मिनेंट को भी हमें उसी ऑर्डर से मल्टीप्लाई करना होगा। is also multiplied is also multiplied is also multiplied by the same factor। कैसे देखते हैं, कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो हमने मैट्रिक्स ए में एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब मैं कहता हूं बताओ ये मैट्रिक्स ए के कितने टाइम्स, मान लेते हैं मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ए था, तो अगर हमने मैट्रिक्स ए में के से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब क्या चेंज हो जाएगा डिटर्मिनेंट में, तो अब चेंज क्या आएगा, चेंज आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं इसका ऑर्डर एन है, क्योंकि जनरल डिटर्मिनेंट किस पे निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स पे निकलेगा। हमने देखा वो किस पे निकल रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे निकल रहा है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे निकल रहा है, तो ध्यान रखेंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे निकलता है, देन आपको क्या करना है, जितना उसका ऑर्डर है, मान लेते 3x3 है, तो उस कांस्टेंट के ऊपर n लगा दो और उसी डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, हमें मिल जाएगा। जैसे कहने का मतलब कब करते हैं, हमारा कोई मैट्रिक्स ए थी, ठीक है, जैसा अभी पीछे हमने सॉल्व किया, उसका वैल्यू सपोज करते हैं मेरा जैसे आ रहा था 2, क्या आ रहा था सर, -2 आ रहा था, राइट। वही लास्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते उसमें वैल्यू आ रहा था -2। अब मैंने क्या किया, उस हर एक एलिमेंट में मैंने क्या किया, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में सपोज करते मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 3x3। तो नए मैट्रिक्स का वैल्यू कितना, डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, नथिंग बट 3 की पावर 3 इंटू, यही हमारा क्या होगा, वैल्यू होगा। ध्यान रखेंगे, इस पे कभी बार शॉर्टकट से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा इसको। अगर सपोज करते हैं मैट्रिक्स ए का हमने डिटरमिनेंट निकाला, किसी ने कहा हम ए के कोफैक्टर का डिटरमिनेंट बताओ, तो क्या होता है, ध्यान रखें, किसका, draw one line, what I am saying, कोफैक्टर ऑफ ए हमारा कोई जिसका हमारे पास ऑलरेडी एक डिटरमिनेंट अवेलेबल है, वो है, ठीक है। अब मुझे इसका कोफैक्टर का डिटरमिनेंट निकालना है। कोफैक्टर का डिटरमिनेंट क्या होता है, कोफैक्टर का डिटरमिनेंट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। फिर व्हाट इज n, मैंने n ऊपर भी नहीं लिखा था, n इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर क्या होगा, 3x3 होगा, तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा। मान लो 2x2 है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर सपोज करो किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आया, मैंने दो चीजें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जब पढ़ाया तो वहां पे ये चीज नहीं बताई थी, अब बता रहा हूँ कि अगर डिटरमिनेंट 0 होता है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं,
अगर जीरो नहीं होता तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। टाइप क्यों बात कर रहा हूँ, या फिर उसको दूसरे फॉर्म में भी हम कह सकते हैं, कैसे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 7th वन, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर और नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। नॉन इन्वर्टिबल मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिनका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, देन ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर बोलते हैं, नॉन सिंगुलर बोलते हैं, और ऐसी मैट्रिसेस का हम इनवर्स निकाल सकते हैं, तो इसीलिए हम उन्हें इन्वर्टिबल मैट्रिसेस भी बोलते हैं। ठीक है, एक और चीज याद होगा, हमने एक डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, राइट? तो देखते हैं, मैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखता हूँ। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसी हो सकती है, ऐसे होगी, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर हो सकती है, ध्यान रखेंगे। चलो मैं उसको बाद में पॉइंट्स के पहले पॉइंट्स के फॉर्म में लिख देता हूँ कि प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। देखो, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स आती है तो डिटरमिनेंट क्या होगा, डायगोनल को मल्टीप्लाई करो तो वही डिटरमिनेंट फॉर द डिटरमिनेंट ऑफ a diagonal matrix is equal to the product of the elements in principal diagonal। सिंपल है, आपको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स आएगी, सीधे सीधे आपको क्या करना है, उससे उसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या हो जाएगा, उसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर सपोज करो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर आती है, सेम वही, तब भी वही कहानी है। डिटरमिनेंट ऑफ, ये सारे पॉइंट्स हेल्प करेंगे, हमें क्वेश्चन आता है तो जल्दी से सॉल्व करना। डिटरमिनेंट ऑफ अ लोअर और अपर ट्रायंगुलर matrices is equal to the product of principal diagonal elements। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक चीज पढ़ेंगे कि हम एडजॉइंट और इनवर्स कैसे निकालते हैं, बट उस चीज को लेके कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उस चीज को डिस्कशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ पहले ही। कैसे, क्या पूछता है, जैसे किसी ने आपसे कहा, ये मोस्ट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो ध्यान रखने हैं हमें। क्या कहा किसी ने हमसे, मेरे से किसी ने कहा आप एडजॉइंट ए का, एडजॉइंट क्या होता है कल की क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट क्लास में। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट नथिंग बट, आपने ए का डिटरमिनेंट निकाला होगा, उसी डिटरमिनेंट के ऊपर n-1 लगा दिए। तो अभी याद करो, अगर यही सेम फॉर्मूला किसके लिए था, कोफैक्टर के लिए भी यही था। किसी ने मेरे से कहा डिटरमिनेंट निकालना है किसका, एडजॉइंट ए का। देखो ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है एडजॉइंट निकालने का, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो क्यों इसका शॉर्टकट करना जरूरी है, तो वहां पे समझ में आ जाएगा क्यों जरूरी है। क्योंकि पहले तो एडजॉइंट निकालना एक एक हरकुलन टास्क, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालना अलग हरकुलन टास्क। टाइमिंग हमारे पास कम है, हम इन शॉर्टकट्स का यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। सो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे एडजॉइंट निकालते हैं, कैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। And also if someone is having any doubts, they can also contact me on my email ID. They can write me up on my email ID. My email ID is vavamithal2909@gmail.com. Someone is having any doubt, they can contact me on this email ID, or they can contact on my number also. Or number I am not providing because it is one of the private things, personal things. So I'm providing my email ID to all of you. So if anyone is having any doubt, they can message me
on this one. Even they can, okay, on this email ID, they can provide the details to me. I will surely reply to you in as early as possible. Okay, so thank you all for listening. I request you all to please share and subscribe my channel. Thank you.